Good morning, students of class 5. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page 100 as I'll be starting with Unit 23, Punctuation. Students, please take out your English grammar book, turn the page to page 100 as I'll be starting with Unit 23, Punctuation. Students, in my last video, I had completed Unit 22 based on simple future tense and future continuous tense, and I'm sure all of you must have completed all the taught exercises of Unit 22. And today I'm going to start with Unit 23 based on punctuation. Now students, what do you mean by punctuation? Now punctuation is the use of different marks. English language जब हम लिखते हैं तो हम कई सारे marks लगाते हैं, है ना? जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, है ना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एसेट्रा, ऐसे कई सारे मार्क्स लगाते हैं और ये सारे क्या होते हैं? पंचुएशन, है ना। और हम पंचुएशंस क्यों यूज करते हैं? टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्लियर एंड करेक्ट। सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग शो करने के लिए वी यूज पंचुएशन। नाउ इफ यू लुक एट पेज 100, आप ध्यान से देखोगे देयर आर 4 फनी सेंटेंसेस जहाँ पे पंचुएशन नहीं लगा है तो अर्थ का अनर्थ हो गया, मीनिंग का कुछ और ही मीनिंग बता रहा है। अटेंशन, आप पिंक बॉक्स में फर्स्ट वाला सुनो। अटेंशन, टॉयलेट्स ओनली फॉर डिसेबल्ड एल्डरली किड्स, है ना। अब इसमें देखो यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, टॉयलेट्स ओनली फॉर डिसेबल्ड कॉमा एल्डरली कॉमा किड्स। अब इसका मीनिंग ही उल्टा हो गया, है ना। देन दी सेकेंड वन, काउस, कीप योर पेट्स अंडर कंट्रोल, है ना। तो देखो अर्थ का अनर्थ बता रहा है। देन दी थर्ड वन, आई लाइक कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मीनिंग ही गड़बड़ हो गया। लेट्स ईट किड्स, है ना, इसका मतलब कि बच्चों को ही खा जाओ, है ना, जबकि होना चाहिए लेट्स ईट कॉमा किड्स। फाइन। नाउ द रॉन्ग यूज ऑफ पंचुएशन मार्क कैन बी सो मच कंफ्यूजिंग, और अगर आपने गलत पंचुएशन का मार्क यूज कर लिया तो वो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। And punctuations are used to bring clarity in the thoughts. Now let's connect these sentences before someone else gets confused. So हम एकदम correct punctuation सीख लें ताकि हम कुछ लिखना कुछ चाहते हैं और पढ़ने वाला कुछ और समझ लेता है, and there's a lot of confusion. So let's correct these sentences before somebody else gets confused, and let's learn something more about punctuation. ठीक है? अब now before I start this exercise, सबको ये punctuation marks पता है, ये है full stop, सबको पता है, this is a full stop, ठीक है। ये punctuation mark को क्या बोलते हैं? full stop. This is comma, ये क्या है बेटा? comma. This is a comma. Then this is a question mark, ये क्या है? question mark. Then this is an exclamation mark, exclamation mark. Then exclamation mark के बाद ये क्या है? apostrophe, ये apostrophe का साइन है। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। फाइन। तो अभी हम बेसिक ये पंचुएशंस के बारे में सीखेंगे। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफी एंड इन्वर्टेड कॉमा। नाउ लेट्स रीड द पोएम बेस्ड ऑन पंचुएशन. A complete sentence tells a complete thought. It tells who or what the sentence is about. It begins with a capital letter
a complete sentence always ends with a punctuation mark. If you write a statement or command, your sentence has a small frame. It's a tiny round dot called a full stop, and you will place it at the end. When writing a sentence that asks something, there's a funny mark to know it's curved and called a question mark. Put it at the end and go. Help me, oh no, hurrah, it's my birthday, we won. Let's have fun in the park. When writing to show an exciting thought, you should use an exclamation mark. Fine. अभी this was the poem. ठीक है. अब ये poem बहुत deep meaning convey कर रही है. ठीक है. सबको पता है जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो वी ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. तो बेटा कैपिटल लेटर भी पंक्चुएशन मार्क में ही आता है ना. A proper noun is always written in capital letter. We always begin a sentence with capital letter. ये भी पंक्चुएशन मार्क में आता है. ठीक है. और सेंटेंस जब भी हम एंड करते हैं तो हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, है ना. नाउ अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. ठीक है. तो हर सेंटेंस के एंड में एक पंक्चुएशन मार्क होता है. सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये तो सबको पता है. और अगर हमने सेंटेंस एंड किया है और उसको फुल स्टॉप से, सिंपल सेंटेंस को फुल स्टॉप से नहीं क्लोज किया है तो दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट, है ना. और राउंड डॉट को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप. देन व्हेन राइटिंग अ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग, अब जब हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट एन क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन मार्क कैसा है? देखो कैसा पोएम में दिया है. इट्स अ कर्व. ये कर्व में बना हुआ है. दिस इज नोन एज क्वेश्चन मार्क. देन जो इंटरजेक्शंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो हमारे सडन इमोशंस और फीलिंग हम जिधर एक्सप्रेस करते हैं, दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. एंड देन अपोस्ट्रोफी हम कब यूज करते हैं? या तो पोजीशन बताने के लिए या शॉर्ट फॉर्म्स बताने के लिए. अपोस्ट्रोफी हम दो जगह यूज करते हैं. जहां हमको पोजीशन की कोई पर्टिकुलर चीज, पोजीशन क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है ना. कि जहां अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं तो पोजीशन बताने के लिए या शॉर्ट फॉर्म्स बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का साइन यूज करते हैं. फिर इन्वर्टेड कॉमास हम कब यूज करते हैं? जब किसी के हम एज इट इज वर्ड्स बिना कोई चेंज के लिखते हैं तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है. फाइन. अभी हम इन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स को और थोड़ा समझेंगे. ठीक है. अब बेटा फर्स्ट है दी फुल स्टॉप. ठीक है. अब थोड़ा फुल स्टॉप के बारे में समझते हैं. जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आई विल एक्सप्लेन दोस एग्जाम्पल्स नाउ. फुल स्टॉप. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? दी फुल स्टॉप. नाउ अब फुल स्टॉप है. ठीक है. फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ कमांड. कोई भी सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट या कमांड है तो उसे क्लोज करने के लिए हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. एंड इट ऑल्सो फॉलोज मोस्ट एब्रिवेशंस. एब्रिवेशंस जानते हैं ना, जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एब्रिवेशन यूएसए है तो कुछ एब्रिवेशंस के बीच में भी फुल स्टॉप आता है. और एग्जाम्पल्स, अब फुल स्टॉप हम कहाँ यूज करते हैं? इनके एग्जाम्पल्स अभी समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. अब सिंपल सेंस स्टेटमेंट है. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. ठीक है. We have begin the sentence with a capital letter and at the end of the sentence हमने क्या लगाया? full stop. अगर हम full stop नहीं यूज करेंगे तो ये हमारा incorrect statement हो जाएगा. Clear? So India is a great country. At the end हमने क्या लगाया? full stop. ठीक है. Then the next one is respect your nation. Respect your nation. इसके एंड में हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप. Respect your nation.
हमने फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। देन द थर्ड एग्जाम्पल है ही इज द MLA, he is the MLA of our area, he is the MLA of our area। अब MLA एक एब्रीवेशन है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन क्या है, MLA। अब यहाँ पे देखो M के बाद फुल स्टॉप है, L के बाद फुल स्टॉप है ना, फिर A है, सो एंड A के बाद भी फुल स्टॉप है, ठीक है। तो ये एब्रीवेशंस के बाद भी फुल स्टॉप आते हैं, सब में नहीं आते, कुछ एब्रीवेशंस में आते हैं, फाइन, ये आपको पता होना चाहिए। सो फुल स्टॉप हम लगाते हैं एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ कमांड, और कुछ एब्रीवेशंस भी फुल स्टॉप फॉलो करते हैं, फाइन। अ फुल स्टॉप इज ऑल्सो फॉलोड आफ्टर एब्रीवेशन, ठीक है। It also follows most abbreviations, fine। So अभी full stop clear हो गया सबको। Now the next example is of the question mark। Next example किसका है बेटा, question mark का। The question mark, क्वेश्चन मार्क तो सबको पता ही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस है, अगर उसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमारा गलत हो जाएगा। नाउ द एग्जांपल वन इज व्हाई वर you absent yesterday? Why were you absent yesterday? इसके एंड में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। अगर हमने किसी से कोई क्वेश्चन लिखा हमने और उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is your favorite singer? Who is your favorite singer? इसके एंड में हमने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, है ना। रिमेंबर, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क, फाइन। नाउ अभी हम बात करेंगे दी एक्सक्लेमेशन मार्क। किसकी बात करेंगे हम, दी एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ दी एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क ये है, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हम जब कोई अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, एंड इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। नाउ द एग्जांपल्स आर फर्स्ट वन, वाव। अब वाव क्या है, इंटरजेक्शन है ना। इंटरजेक्शन के बाद हमेशा क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपने इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो वाव इंटरजेक्शन है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ कैच, ये आपकी एक्साइटमेंट और सरप्राइज की, वंडर की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो वाव, व्हाट अ कैच। यहाँ पे वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगाया है टू शो द फीलिंग ऑफ एनकरेजमेंट एंड वंडर, फाइन। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेल डन। आप अच्छा करते हो तो टीचर बोलती है ना, वेल डन।
टू प्रेज अ परफॉर्मर हमने क्या बोला, वेल डन, है ना। ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि यू आर प्रेजिंग अ परफॉर्मर। और इसके बाद हमने क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। देन इफ यू हैव सीन समथिंग नाइस, आप क्या बोलोगे, इफ यू हैव सीन अ नाइस ड्रेस, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, at the end exclamation mark. So what a pretty dress, at the end exclamation mark. यहाँ पे हम अपना जो हैप्पीनेस है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। फाइन, तो अभी सबको समझ में आ गया कि एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शंस के बाद लगता है एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ना अब हम नेक्स्ट जो समझेंगे दैट इज अबाउट द कॉमा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दी कॉमा। हमें कॉमा कब कब यूज करना है ना। अब कॉमा इज यूज टू इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट पॉज इंडिकेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। इट सेपरेट्स 3 और मोर सिंगल आइटम्स ऑन द लिस्ट, है ना। और कॉमा जब बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पेशली नाउन्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट एग्स, कॉमा पेंसिल्स, कॉमा वेजिटेबल्स, कॉमा फ्रूट्स, कॉमा नोटबुक्स। तो हम जब बहुत सारी चीजें उनको हम सेपरेट करते हैं तो हम किससे सेपरेट करते हैं बेटा, कॉमा, है ना। जैसे महेश, कॉमा ऋषि, कॉमा हर्षिता, कॉमा जिगर आर माई क्लासमेट्स, है ना। तो इन बच्चों के नाम हमने किससे सेपरेट किए, कॉमा से। तो इट सेपरेट्स 3 और मोर सिंगल आइटम्स ऑन अ लिस्ट। देन इट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एड्रेस। आप लेटर राइटिंग में जब एड्रेस लिखते हो तो आप कॉमा लगाते हो कि नहीं, है ना। लेन नंबर 16, कॉमा डिफेंस कॉलोनी, कॉमा फुलवरिया, कॉमा वाराणसी। तो एड्रेस लिखते समय आप डिफरेंट पार्ट्स में के बाद कॉमा लगाते हो टू सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। देन इट इज यूज्ड टू सेपरेट सम एक्सप्रेशंस लाइक यस, नो, ओ, हाउएवर एटसेट्रा। क्वेश्चन में जब आप आता है यू नीड टू आंसर, या कोई आपको सेंटेंस यस, नो, ओ या हाउएवर को लेके लिखना है, सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमने कहीं भी यस लिख के कुछ और हम उसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं तो यस के बाद कॉमा लगा के ही कोई दूसरा वर्ड आएगा। सेम इज विथ नो ऑल्सो, है ना। यस आई लाइक टू वॉच मूवीज, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यस, कॉमा आई लाइक टू वॉच मूवीज, तो यस के बाद क्या आएगा, कॉमा। इसी तरह से अगर नो है तो उसके बाद भी कॉमा लगा के बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे, ओ है तो कॉमा लगा के बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे, हाउएवर है तो बाकी का सेंटेंस कॉमा लगा के ही कंटिन्यू करेंगे। ये बेटा ध्यान में रखना है। देन इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर कोटेशन मार्क, है ना। जब हम किसी के वर्ड्स एग्जैक्ट विद इन कोटेशन मार्क में डालेंगे तो उसके पहले हमेशा कॉमा आएगा। फाइन, अभी मैं आपको ये सारी बातें एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल्स। Now the examples are, the first example, I brought carrots, comma, cabbages. I bought carrots, comma, cabbages, peas and मशरूम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एन में फुल स्टॉप लगाया है, कैरेट के बाद कैबेजेस के बाद हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, क्योंकि हम ये अलग अलग आइटम्स को सेपरेट कर रहे हैं, है ना। तो हम अलग अलग आइटम्स को, सिंगल आइटम्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, कॉमा। ठीक है, देन ना हम सपोज किसी को बुला रहे हैं, लेट्स से ऋतु come
ईयर। तो कभी भी किसी का हम नाम लिखते हैं तो उसके बाद हम हमेशा कॉमा लगाते हैं टू एड्रेस समथिंग, और हम पोस्टल एड्रेस भी लिखते हैं उसमें भी हम कॉमा यूज करते हैं। देन थर्ड ऐसे कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट सम एक्सप्रेशंस लाइक यस, नो, ओ, हाउएवर। सो यस, कॉमा, I am ready for the test. As I said, expressions like yes, no, oh, however, इन सब के बाद भी हमेशा बेटा क्या आता है, कॉमा आता है। So yes, I am ready for the test. Yes, I am ready for the test. Then the fourth example is Priya said. अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले इट इज यूज्ड टू जस्ट बिफोर द कोटेशन मार्क, जो इन्वर्टेड कॉमा आएगा उसके पहले हमेशा ये कॉमा आएगा। प्रिया सेड माय फेवरेट कलर इज ब्लू। प्रिया सेड माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ये विद इन इन्वर्टेड कॉमा। तो ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले हमेशा कॉमा आएगा, है ना। क्या क्या याद रखना है कि जब हम सिंगुलर आइटम्स को सेपरेट करते हैं सेंटेंस में तो हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। जब हम कोई भी नेम लिखते हैं, एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो हम उसके बाद हमेशा नेम के बाद कॉमा लगाते हैं, है ना। कुछ एक्सप्रेशंस जैसे यस, नो, है ना, ओ, हाउएवर है, उनके बाद हम कॉमा लगा के ही बाकी का सेंटेंस लिखते हैं। एंड हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के पहले हमेशा कॉमा आके ही आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, ये आपको याद रखना है। फाइन। सो अभी सबको कॉमा पता चल गया होगा, और सबसे छोटा पॉज है ना, सबसे छोटा पॉज है। क्लियर? नाउ लेट्स लर्न अबाउट अपॉस्ट्रोफी। अब हम अपॉस्ट्रोफी के साइन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ the apostrophe. The apostrophe का साइन हम कब यूज करते हैं? As I said, to show ownership of an object, है ना। ownership मतलब possession, कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है, या इट ऑल्सो शोज कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म। ये पोजेशंस बताते हैं या शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स समझेंगे तभी आएगा। नाउ एग्जाम्पल 1 इज दिस इज आदित्य's, दिस इज आदित्य's mansion. Mansion is a big, luxurious house. Fine? So, this is Aditya's mansion. अब यहाँ पे आदित्य में हमने कौन सा साइन लगाया? अपॉस्ट्रोफी का साइन। क्यों लगाया है? ये ओनरशिप बता रहा है कि ये मेंशन किसको बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि ये मेंशन आदित्य को बिलोंग करता है। ये पोजीशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है कि ये मेंशन किसका है? आदित्य का है। सो वी यूज अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजीशन और ओनरशिप। देन द सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज मिस्टर A.M. Jha's son. फाइन। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही इज मिस्टर A.M. Jha's son. दैट मीन्स कि ये किसका बेटा है, किसका सन है? A.M. Jha's। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये A.M. Jha का सन है। अगेन पोजीशन बता रहा है। देन अब यहाँ पे ये दो तो आपने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स किसके पढ़े? जो ओनरशिप और पोजीशन बताते हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब सबको पता है कि आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई एम, ठीक है।
ये कॉन्ट्रैक्शंस है ना। जैसे यू आर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हाँ यू आर। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने के लिए भी हम कौन सा साइन यूज करते हैं बेटा, अपॉस्ट्रोफी का साइन। सो नाउ अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल इज आई एम प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। आई एम प्राउड of his achievements. I am proud of his achievements. यहाँ पे जो I am है, ये I am का शॉर्ट फॉर्म I अपॉस्ट्रोफी M है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। देन फोर्थ वन, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, दैट इज डोंट, है ना। So the next one is why don't, do not का short form क्या है, don't। यहाँ भी हमने apostrophe यूज किया। Why don't you meet him? Why don't you meet him? यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉस्ट्रोफी का साइन हम ओनरशिप या पोजीशन बताने के लिए कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है, या हम कॉन्ट्रैक्शंस दैट इज शॉर्ट फॉर्म्स बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अभी जो नेक्स्ट पंक्चुएशन है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। फाइन, now sorry the quotation mark, exclamation तो मैं बता चुकी आपको, sorry the quotation marks, inverted comma जिसको बोलते हैं उनको quotation marks भी बोलते हैं, बट अधिकतर इसको inverted comma ही हम बोलते हैं। फाइन, और ये हम कब यूज करते हैं, टू एनक्लोज व्हाट इज सेड डायरेक्टली। जब स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स हम एज इट इज रखते हैं तो वो हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रखते हैं, है ना। दे आर यूज्ड टू एनक्लोज व्हाट इज सेड डायरेक्टली, दे एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हम हमेशा विद इन इन्वर्टेड कॉमास ही रखते हैं। फाइन, नाउ द एग्जाम्पल्स। Now the examples are, the first one, the teacher said, the teacher said, well begun is half done। ठीक है, टीचर ने कहा वेल बिगिन हाफ डन। सो टीचर के वर्ड्स को हमने एज इट इज किस में लिखा, विद इन इन्वर्टेड कॉमास। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद said with an inverted comma, education is the manifestation of the perfection already in men। विवेकानंद ने जो कहा वो हम एज इट इज हमने किस में डाला, विद इन द कोटेशन मार्क, दैट इज द इन्वर्टेड कॉमा। फाइन, सो जब हम स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज रखते हैं तो वो किस में आते हैं, विद इन इन्वर्टेड कॉमा। देन द लास्ट एग्जांपल, आई सेड टू हर, और आप सब जगह देखोगे इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या लगाया है, कॉमा। ठीक है, नाउ ओपन इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डू यू वेक अप सो लेट, और
इसके बाद जो पंक्चुएशन मार्क आएगा उसके बाद ही हमेशा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा. जैसे आफ्टर द क्वेश्चन मार्क यू पुट द इन्वर्टेड कॉमा. So I hope now the punctuation marks are clear to you children. That's all for today. I'll be continuing with the exercises of Unit 23 in my next video. Thank you students. Do learn and revise the taught exercises. Do learn and revise the units as your annual exams are approaching. Thank you students. Good day ahead.